Welcome to Still Learning. In today's video, we are diving into the Memorandum of Association and breaking down its key clauses in a simple and straightforward way. Now, let's understand the meaning of the Memorandum of Association. The Memorandum of Association is a critical legal document that outlines a company's identity, scope, and purpose. It establishes the objectives for which the company is formed and dictates the framework within which it must operate. The Memorandum of Association is one of the foundational documents required during the incorporation of a company under the Companies Act 2013 and is essential for defining the company's relationship with its shareholders. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो एक कंपनी की आइडेंटिटी, स्कोप और पर्पस को डिफाइन करता है। ये डॉक्यूमेंट बताता है कि कंपनी किस पर्पस के लिए फॉर्म की गई है और इसके ऑपरेशन का फ्रेमवर्क क्या होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर कंपनी इनकॉर्पोरेट करते वक्त ज़रूरी होता है और ये कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच का रिलेशन को भी डिफाइन करता है। Let's explore the key features of Memorandum of Association. So the first one is defines the company's purpose. The Memorandum of Association clearly states the main objectives the company intends to pursue guiding its business activities. Memorandum of Association एक important legal document होता है जो एक कंपनी की identity, scope और purpose को define करता है। Second, limits company's objectives. It outlines the activities a company can engage in and anything beyond what is specified is considered ultra virus. ये डॉक्यूमेंट ये भी बताता है कि कंपनी किस किस टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकती है और जो भी एक्टिविटीज़ इसके स्कोप के बाहर होती हैं उन्हें अल्ट्रा वायरस कहा जाता है। अल्ट्रा वायरस एक्ट. Ultra virus is a Latin term meaning beyond powers. If a company undertakes an action or activity that is outside the scope of its memorandum of association, that action is considered ultra virus. Ultra virus एक Latin term है जिसका मतलब है beyond powers. अगर कंपनी कोई ऐसी एक्शन या एक्टिविटी करती है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के स्कोप के बाहर है तो उस एक्शन को अल्ट्रा वायरस माना जाता है। Now let's move on to the clauses. So the first one is name clause, domicile clause, object clause, liability clause, capital clause and subscription clause. I will be explaining each clause in detail with examples so that you may have a clear understanding of each one. So the first one is name clause. This clause specifies the legal name of the company and it must be unique. ये clause कंपनी का legal name specify करता है जो unique होना चाहिए. The name of the company must end with limited for a public company or private limited for a private company. पब्लिक कंपनी के नाम के एंड में लिमिटेड और प्राइवेट कंपनी के नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड होना इंपॉर्टेंट है। इट इंश्योर्स दैट द नेम इज नॉट आइडेंटिकल टू एन एग्जिस्टिंग कंपनी एंड डज नॉट मिसलीड द पब्लिक अबाउट द नेचर ऑफ द बिजनेस। ये क्लॉज इंश्योर करता है कि कंपनी का नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से आइडेंटिकल ना हो और पब्लिक को बिजनेस के नेचर को लेकर गलत इंप्रेशन ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, ABC टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड फॉर अ प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट, Registered office clause, the situation or domicile clause. This clause states the physical location of the company's registered office. ये clause कंपनी के registered office का physical location बताता है। The company must have its registered office within the jurisdiction of the registrar of companies. कंपनीज का रजिस्टर्ड ऑफिस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर होना चाहिए। ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशंस, लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड नोटिसेस विल बी सेंट टू दिस एड्रेस. इस एड्रेस पर सारी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस, लीगल डॉक्यूमेंट्स और नोटिसेस भेजी जाती हैं। इट प्रोवाइड्स अ लीगल रिकॉग्निशन एंड सर्व्स एज द ऑफिशियल एड्रेस फॉर एनी कॉरेस्पॉन्डेंस. ये एड्रेस कंपनी को लीगल रिकॉग्निशन देता है और किसी भी कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए ऑफिशियल एड्रेस होता है। द कंपनी मस्ट नोटिफाई द ROC इफ द ऑफिस लोकेशन चेंजेस. अगर कंपनी अपने ऑफिस का लोकेशन चेंज करती है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को नोटिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट क्लॉज. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉजेज डिफाइनिंग व्हाट द कंपनी इज अलाउड टू डू. ये क्लॉज सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये डिफाइन करता है कि कंपनी क्या एक्टिविटीज कर सकती है। इट इंश्योर्स द कंपनी डज नॉट एंगेज इन एनी एक्टिविटीज बियॉन्ड दोज आउटलाइंड हियर. इट टिपिकली इंक्लूड्स मेन ऑब्जेक्ट्स, the primary activities or purpose for which the company is formed. This defines the core business of the company. ये इंश्योर करता है कि कंपनी उन्हीं एक्टिविटीज़ में इंगेज हो जो यहाँ पर आउटलाइन की गई हैं। इसमें जनरली इंक्लूड होते हैं मेन ऑब्जेक्ट्स। ये वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है जिनके लिए कंपनी बनाई गई है। ये कंपनी के कोर बिजनेस को डिफाइन करता है। नेक्स्ट, एंसिलरी और इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स, एक्टिविटीज दैट सपोर्ट और हेल्प अचीव द मेन ऑब्जेक्टिव्स सच एज बोरोइंग फंड्स और एक्वायरिंग प्रॉपर्टी. ये एक्टिविटीज़ हैं जो मेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करती हैं, जैसे फंड्स बोरो करना या प्रॉपर्टी एक्वायर करना.
Other objects. Optional objectives the company may undertake if needed, but these require approval from the members if pursued. ये optional objectives हैं जो कंपनी ज़रूरत पड़ने पर undertake कर सकती है, लेकिन इनके लिए members की approval की ज़रूरत होती है. For example, a company's main object might be to manufacture electronic devices and an ancillary object might be to import raw materials for production. अगर एक कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करना है तो उसका मतलब ये है कि कंपनी का कोर बिजनेस यही होगा. एंसिलरी ऑब्जेक्ट ये होगा कि कंपनी रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करे जो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है. इससे कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को एफिशिएंटली अचीव कर सकती है. नेक्स्ट इज लाइबिलिटी क्लॉज. This clause defines the extent of the liability of the company's members shareholders. ये clause कंपनी के members shareholders की liability को define करता है. Liability can be of three types. The first one is limited by shares. Members liability is restricted to the amount unpaid on their shares. इसमें members की liability उनके shares के unpaid amount तक ही limited होती है. For example, if a shareholder own 100 shares with rupees 10 per share and has paid rupees 5 per share, their liability is rupees 5 per share. जैसे अगर एक शेयर होल्डर के पास 100 शेयर्स हैं जिनका फेस वैल्यू ₹10 है और उन्हें 5 पर शेयर पे किया है तो उनकी लाइबिलिटी 5 पर शेयर होगी. सेकेंड इज लिमिटेड बाय गारंटी. In this case, members' liability is limited to the amount they agree to contribute to the company in the event of winding up. This is common in non-profit companies. इसमें members की liability उस amount तक limited होती है जो उन्होंने कंपनी के winding up के time contribute करने के लिए agree किया होता है. ये mostly non-profit companies में होता है. Next is unlimited. The members have unlimited liability, meaning their personal assets can be used to cover the company's debts. This is rare in modern companies. इसमें members की liability unlimited होती है, मतलब उनकी personal assets भी कंपनी के डेट्स कवर करने के लिए यूज किए जा सकती हैं. ये मॉडर्न कंपनीज में रेयर होता है. नेक्स्ट इज कैपिटल क्लॉज. The capital clause specifies the authorized share capital of the company, which is the maximum amount of capital that the company can raise through the issuance of shares. Capital clause कंपनी के authorized share capital को specify करता है जो कि maximum amount है जो कंपनी shares issue करके raise कर सकती है. It also describes how this capital is divided into different types of shares such as equity or preference shares, including their value and quantity. ये clause बताता है कि इस कैपिटल को डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स जैसे इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स में कैसे डिवाइड किया गया है, उनका वैल्यू और क्वांटिटी भी मेंशन होती है. फॉर एग्जांपल, अ कंपनीज ऑथराइज्ड कैपिटल माइट बी ₹10 करोड़ डिवाइडेड इनटू 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. दिस क्लॉज अलाउज द कंपनी टू रेज मनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स इन एक्सचेंज फॉर ओनरशिप. सपोज एक कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल ₹10 करोड़ हो सकता है जो 1 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच में डिवाइड किया गया हो. इस क्लॉज की वजह से कंपनी शेयर होल्डर से पैसे रेज कर सकती है जो ओनरशिप के बदले दिया जाता है. लास्ट वन इज सब्सक्रिप्शन क्लॉज. This clause contains the names of the initial subscribers, founders or promoters who signed the memorandum at the time of the company's formation. ये clause उन initial subscribers means फाउंडर्स या प्रमोटर्स के नेम्स को इंक्लूड करता है जो कंपनी के फॉर्मेशन के वक्त मेमोरेंडम को साइन करते हैं. It states their commitment to purchase certain number of shares in the company and the number of shares each of them has agreed to take. ये क्लॉज बताता है कि सब्सक्राइबर्स कितने शेयर्स परचेज करने के लिए कमिटेड हैं और हर एक सब्सक्राइबर ने कितने शेयर्स लेने का एग्रीमेंट किया है. द सब्सक्राइबर्स आर द फर्स्ट शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एंड दे एग्री टू इन्वेस्ट इन द कंपनी. सब्सक्राइबर्स कंपनी के पहले शेयर होल्डर्स होते हैं और ये एग्री करते हैं कि वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर 3 प्रमोटर्स, द सब्सक्रिप्शन क्लॉज माइट स्टेट व्हाट दैट they agree to subscribe to ₹5,000, 3,000 and 2,000 shares respectively. अगर 3 प्रमोटर्स हैं तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज ये स्टेट कर सकता है कि पहला प्रमोटर 5,000 शेयर्स लेने के लिए एग्री करता है, सेकंड प्रमोटर 3,000 शेयर्स लेने के लिए एग्री करता है एंड थर्ड प्रमोटर 2,000 शेयर्स लेने के लिए एग्री करता है. इससे ये क्लियर होता है कि हर प्रमोटर कितने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए कमिटेड है. So that's all for this topic which appears frequently in exams. I have done my best to cover all the key points in detail. If you have any questions, feel free to leave in the comment. I would be happy to help. Your feedback is valuable and much appreciated.